Good morning, प्यारे बच्चों. In the first video, we have done just introduction, and in this video, we are going to start with the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature basically हम केवल नोट्स का ही ले रहे हैं. एंड अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो इसकी अलग से वीडियो है IUPAC nomenclature की. काइंडली वॉच दैट वीडियो. सो यहाँ से हम we are taking only those examples which are mentioned in the book, NCERT book of class 11th, and some important, right? So हम ले लेते हैं, साथ साथ में रूल्स बताती जाऊंगी, डोंट वरी. एंड लेट अस स्टार्ट. Only these examples we will take which I have written in the notes. So write IUPAC names of the following. First this structure is given. The very first rule, we have to identify the longest possible chain. Now, this chain contains 8 carbons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, we are taking this chain as the main parent chain. And numbering, we can start from this side as well as from this side. If we start numbering from this end, we are getting first substituent at second carbon. If we start numbering from this end, we are getting 1, 2, 3. First substituent will be present at carbon number 3. So we have to start numbering from this end. Why so? Because first substituent, these are known as substituents, and this is the parent chain. Parent chain को हम पापा बोलते हैं, substituents को बच्चे कहते हैं, right? Wait. आज बनती मैं एक टेबल पे बना रही हूँ, मेरी दूसरी साफ कर ली. आज दूसरी वाली टेबल साफ कर ली, मैं इस पे बना रही हूँ. है नहीं, मैं वीडियो बना आज ही, कोई बात नहीं. Okay, so one methyl group is present at carbon number 2, one is present at 5, one is present at 6. So its name is 2, 5, 6 trimethyl octane, right? ये जो मिथाइल है ना, this is prefix, substituents. Oct है ना, 8 carbon, this is known as word root and this is known as prefix. Substituent को prefix कहते हैं. The total number of carbon in a chain we call it word root. ये word root है. देखो, one IUPAC name has 3 parts. Prefix जो substituent होता है, word root the number of carbon atoms को relate करता है in the main parent chain, और last में होता है हमारा suffix. Suffix 2 kinds का होता है, primary and secondary. प्राइमरी में हम लगाते हैं एन, इन और आइन, और सेकेंडरी में लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप लाइक ओल, अल, ओइक एसिड एंड सो ऑन. सो इन दिस कंपाउंड ओनली primary suffix is present, not secondary. No functional group is there. So it is 2, 5, 6. Comma is put between the numbers and number and word के बीच में hyphen आता है. So 2, 5, 6 dash or hyphen trimethyl-octane. First letter should be capital, rest being small. So it is trimethyl-octane. Now, let us have a look on the second example. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If we start numbering from this end, we are getting first substituent at carbon number 3. If we start numbering from this side, we are also getting the substituent at carbon number 3. अब कहाँ से करें नंबरिंग? अब इसका नेम है इथाइल, इसका नेम है मिथाइल. सो नंबरिंग हम अगर दो सब्सिट्यूएंट को सिमिलर पोजीशन मिल रही हो, देन वी विल गो विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा हम उसको स्मॉल नंबर दे देंगे. ई पहले आता है, एम मिथाइल एम बाद में आता है, तो हमने नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे. 1, 2, 3, 4, ये हटा देते हैं यहां से, 5, 6 और 7. सी 3 पर इथाइल प्रेजेंट है, 5 पर मिथाइल, तो हमने लिखा 3 इथाइल, 5 मिथाइल, हेप्ट एन, बिकॉज ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर देयर. अब थर्ड पे आ जाइए. थर्ड पे OH है. OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, ठीक है. ये एल्कोहल होता है, इसका सफिक्स
ओल लगता है, राइट? एक OH ये रहा, एक मिथाइल ये रहा. Now the question is from which side we should start the numbering? We should start the numbering from that end from where the functional group को छोटा नंबर मिले. 1 2 3 इधर से आएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को, बिकॉज मिथाइल और OH में से फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस ज्यादा होती है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेकेंडरी सफिक्स होता है. ये देखो ध्यान से, इधर देखो, राइट. सेकेंडरी सफिक्स होता है, लास्ट में आएगा. तो ये सब्सिट्यूएंट है, इसका नेम पहले आएगा. 6 पे मिथाइल है, पापा है 8 कार्बन का, ऑक्ट हो गया. सारे सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा. और 3 पे ओल है, इसका नेम हो गया 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल. अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक COOH, एक कीटो ग्रुप. कीटो ग्रुप को हम ओन कहते हैं, C डबल बॉन्ड O को ओन कहते हैं. तो प्रेफरेंस देते हैं COH को. कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, ये देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस होती है साइनाइड से ज्यादा. साइनाइड बड़ा होता है CHO से, और एल्डिहाइड बड़ा होता है कीटोन से, और कीटोन बड़ा होता है एल्कोहल से. एल्कोहल बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड बड़ा होता है एल्काइल ग्रुप से, या जैसे कि मिथाइल इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट से बड़ा होता है, राइट. डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगा लो यहाँ पे, राइट. तो ये सीक्वेंस है, इसमें COH है और C डबल बॉन्ड O है, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू COH. सो वी शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड, राइट. शहनशाह में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है ना, हम जा खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. इनका जो अमिताभ बच्चन है ना, वो COH है. ये जहां खड़ा हो जाता है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी. 1 2 3 4 5. 5 पे कौन है? कीटो भी कहते हैं इसको, ऑक्सो भी कहते हैं. 5 ऑक्सो हेक्सेन ओइक एसिड. ओइक एसिड सफिक्स इज बीइंग यूज्ड फॉर द COH ग्रुप. नाउ फिफ्थ पे आ जाइए. फिफ्थ में क्या है? दो कीटो ग्रुप्स हैं. इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड वी आर गेटिंग फर्स्ट कीटो ग्रुप एट पोजीशन नंबर 3, बट फ्रॉम दिस साइड वी आर गेटिंग इट एट 2. तो नेचुरली हम यहां से करेंगे, छोटा नंबर मिलना चाहिए कीटो ग्रुप को, राइट. सो हमारा हेक्सेन है 2 और 4 पे दो ओन है. हेक्सेन 2, 4 dione. Did you notice one thing? Hyphen is there between number and word, and between the numbers we have put comma. Hexane first letter will be small, rest all will be very small. Hexane 2,4-dione. अब इसमें प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट है, प्राइमरी फिक्स है और सेकेंडरी फिक्स है. दूसरी बात, हेक्सेन का ई हमने लिखा है क्योंकि पिछला कॉन्सोनेंट था, ठीक है. तो ई लिखेंगे, रिटेन रखेंगे. अभी आगे आएगा, पता चलेगा कब रिटेन करना है कब नहीं करना. ओके. सो इस पे आ जाइए. ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है. अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है, और अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है. इफ सच सिचुएशन इज देयर, out of triple and double we have to choose, then we will go with the double bond. So numbering must be started from that end, from where the double bond is getting first position. 1 2 3 4 5 6. It is hexa. आ क्यों लगाया? जब दो इन या दो आइन हो तो आ लगता है. सो हेक्सा 1, 3 डाइइन एंड 5 आइन. 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होता है उसको ही लिखते हैं. सो हेक्सा 1 3 डाइइन 5 आइन. 7 पे आइए. पहले तो यहाँ कार्बन लगा दो. 3 कार्बन है, ये बेंजीन है. बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो ये हमारा पापा हो गया, ये इसका बच्चा, यानी कि पापा हो गया पेरेंट या वर्ड रूट, और ये बच्चा हो गया सब्सिट्यूएंट यानी कि प्रीफिक्स. प्रोपाइल जुड़ा है बेंजीन पे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल बेंजीन. फाइन, हम थे 8 पे. इसमें यदि ऑल ऑफ दीज आर द कार्बन, ये 1 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7. Why did we start numbering from this end? Everybody knows, because from this side substituents are getting the lower number. So 3 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो. पहले हम ब्रोमो का नाम लिखेंगे. Why? Because B अल्फाबेटिकली पहले आता है. 3 डैश ब्रोमो डैश 3 डैश क्लोरो. हेप्ट 7 कार्बन, all single bonds are there, heptane. 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन. अब आ जाओ 9th पे.
नाइन्थ में इसको ध्यान से देखो, तो आप पहले सी लगा लो, नहीं तो आपको फीलिंग आएगी कि 4 कार्बन है। किसी किसी को 5 कार्बन की फीलिंग भी आती है। नहीं लेनी फील, आप एच और सी एल तो पहले लिखा हुआ है, वहां क्या सी मानोगे आप लोग। तो सी 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 टोटल 3 कार्बन है। ये सी एच ओ होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो सफिक्स है वो अल लगेगा। सो टोटल 3 कार्बन है, थर्ड कार्बन पे सब्सिट्यूएंट है, तो हम लिखेंगे 3 पे क्लोरो है, और खुद ये प्रोपेनल है, 3 क्लोरोप्रोपेनल। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड, ये सी फैला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, टोटल 7 कार्बन आर देयर, हेप्ट हो जाएगा। 2 पे ये जो है ना, ये को सब्स्टिट्यूएंट ही कहते हैं। ये देखो मिथाइल मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट आ जाओ साइनाइड। साइनाइड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला था सीओएच के बाद जो है साइनाइड आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 3 पर एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, जब ये सिंगल होता है ना खाली से सी ही बोलते हैं। 3 पे मिथाइल है, पेंटेन नाइट्राइल, साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है। 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। This example, Cl2CH2OH. In this compound, total 2 carbons are there. तो word root तो इथेन हो जाएगा. This is the functional group. Will be given preference. Numbering will be started from this end because OH is attached here. 1, 2. 2 पे 2 क्लोरो है, तो 2,2 डाई क्लोरो इथेनॉल इज द आंसर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, बिकॉज ये एनसीईआरटी की बैक में गिवन है। ओके, नेक्स्ट है, देखो सीएचओ एल्डिहाइड कीटोन में से किसको प्रेफरेंस देंगे? ऑफ कोर्स एल्डिहाइड को। दिस विल बी गिवन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 3 पे ऑक्सो लगा हुआ है, राइट, और टोटल 4 कार्बन है, राइट, ब्यूटेन, और पीछे अल, बिकॉज सीएचओ ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप। 3 ऑक्सोब्यूटेनल, टोटल 4 कार्बन को ब्यूटेन, सी एच ओ जब होता है तो उसे हम अल कहते हैं, और 3 पर हमारा ऑक्सो है। कोई चाहे तो इसे कीटो भी लिख सकता है, इज द सेम थिंग। 14 में बेंजीन कहते हैं प्लेन। बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा दो तो टोलुइन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो तो एनिलीन कहते हैं। वेट, फाइन। बेंजीन के ऊपर COOH लगा दो तो बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये जो बेंजो वर्ड है ना, ये इसके लिए यूज होता है, 7 कार्बन के लिए। रिमेंबर, बेंज ईन में 6 कार्बन होते हैं, बेंजो में 7 कार्बन होते हैं। बेंज, इसके लिए हमने यूज किया वर्ड ओइक एसिड। ये साइक्लोहेक्सेन है। अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ओइक एसिड आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, इस कार्बन का नाम मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ क्यों नहीं किया? बेंजो के अंदर ये कार्बन आ गया। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है। बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो फिनोल कहते हैं। बेंजीन पे OCH3 कनेक्टेड हो तो एनीसोल कहते हैं। वैसे हम इसको मिथ ऑक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। दिस इज 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन। Why did we start numbering from bromo? Because B comes first, then N. Both of these are the substituents, right? So we will start numbering from that end, where the alphabetically जो first आ रहा है ना, that should get the lower number. So यहाँ 1 आएगा, 2, 3 and 4। तो 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। सी दिस एग्जाम्पल, C2H5 जुड़ा है और OMe। लेट मी टेल यू, Me को हम लोग मिथाइल कहते हैं, CH3 Me एक ही बात है। ET इथाइल को कहते हैं, मींस C2H5, या इन 2 कार्बन्स को एक ही बात है। इथाइल को ET कहते हैं, मिथाइल को Me कहते हैं। अभी तो पढ़ा, बेंजीन पे OMe लगा हो तो हीरा एनिसोल होता है। इस एनिसोल के सेकंड कार्बन पर ये तो 1 हुआ, जहां OMe है, ये सेकंड है, 2 इथाइल एनिसोल हो जाएगा। इसमें देखो सब सब्सिट्यूएंट्स हैं। हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4। इधर से नहीं कर सकते, इस साइड से क्यों नहीं कर सकते? यहां से दूर पड़ेगा, वहां देखो पास पास है, तीनों पास पास है ना, तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 4 इथाइल, why did we write 4 ethyl first? Because E comes first. While writing the name, we have to take care of the alphabetical order also. 4 ethyl, 1 पे fluoro, 2 nitrobenzene. Now this is बेंजीन पे अगर NH2 लगा हो, ये रहा हमने अभी पढ़ा था, एनिलीन कहते हैं। सो एनिलीन इज द पापा
एंड NO2 इज द बच्चा, ये लगा 4 कार्बन पे। हाउ NH2 वाला कार्बन इज कंसिडर्ड टू बी 1, 2, 3 एंड 4, 4 नाइट्रो एनिलीन वी कॉल इट, राइट। ओके, लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। ये देखो, ये स्वास्तिक का निशान बना है, 1 है, 2, यहाँ पे सब जगह पे कार्बन है, 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5। ये तो पापा हो गया। इस पापा पे एक बच्चा ये लगा है सब्सिट्यूएंट, एक सब्सिट्यूएंट ये है, और दोनों दो दो कार्बन वाले हैं। थर्ड पोजीशन पर 2 इथाइल लगे हैं, सो हम लिखेंगे 3,3 डाई इथाइल पेंट एन, राइट। अब ये देखो, अजीब सी स्ट्रक्चर है बट इट्स सो सिंपल। आप यहां से शुरुआत करिए कार्बन की, मतलब नंबरिंग वाई, सो बिकॉज डबल बॉन्ड इज हेयर, डबल बॉन्ड शुड गेट द लोअर नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 कार्बन को डेक कहते हैं, और एक कार्बन पर इन है तो वी विल कॉल इट डेक, यानी कि 10 कार्बन के पहले पर सॉरी डबल बॉन्ड है, डेक 1 इन आ जाएगा। 26, CONH2 को एमाइड कहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो स्पेशल IUPAC के नाम से ही बनी हुई है। मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगी IUPAC नॉमेनक्लेचर की, स्पेशली उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है हर चीज। तो ये हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जो नोट्स में है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें करने ही है 11th क्लास में। सो इट इज 1, 2, 3। अब 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, और CONH2 को हम एमाइड कहते हैं, प्रोपेन एमाइड हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर देखो, साइक्लोपेंट है, और पेंट के मैंने बोला था ना जहां पे COH होगा वो फर्स्ट कार्बन होगा। हमने COH को नंबरिंग क्यों नहीं दिया फर्स्ट? इसलिए नहीं दिया बिकॉज साइकिल है ना, तो ये बीच में आएगा नहीं, डिसकनेक्शन हो जाएगा। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते हैं अलग से। जब भी कभी COH एलिफेटिक साइक्लिक पे जुड़ा हो तो हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। साइक्लोपेंट के 2 पे इन है और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड आप नहीं लिख सकते, ओइक तब होता है जब COH पैरेंट चेन में आ रहा हो। अभी साइक्लोपेंट में कहाँ आ रहा है, अलग से पड़ा हुआ है, दैट्स वाई दिस इज साइक्लोपेंट के फर्स्ट कार्बन पर CHO है, एंड थर्ड कार्बन पर मिथाइल है। हम बोलेंगे 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, राइट। अब आ जाओ 29 एग्जाम्पल पे। इसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटो ग्रुप, साइनो ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप। तो क्या करें? मैंने पहले भी बोला था कि COH शहंशाह है, जहां पे ये खड़ा हो जाएगा नंबरिंग वहीं स्टार्ट होगी। तो COH वाला कार्बन 1 है, 2, 3, 4, 5, राइट। फिफ्थ कार्बन पर CHO ग्रुप को फॉर्माइल कहते हैं। अगर ये अकेला होता तो हम अल कहते, अब इसको फॉर्माइल कहेंगे, राइट। और 3 पे कौन है? ऑक्सो है। 4 पे साइनो है, एंड 5 पे एमिनो भी है। अब इसको अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो जाओ, 5 एमिनो, 4 साइनो, 5 फॉर्माइल, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, राइट। अब ये देखो स्वास्तिक की हमने ये भी कर दिया। अगर हम यहाँ पे कार्बन पुट करें तो ये 5 नहीं 7 बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फोर्थ कार्बन पर प्रोपाइल लगा है दोनों तरफ, तो हम 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 4,4 डाई प्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है। अब ये देखो 4 कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4, और साइक्लोब्यूटेन है 1, 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन। सो ये कौन है? ये देखो 1, 2। COCl को कैटेगरी बता देती हूँ, ये कैटेगरी है, यहाँ लिख रही हूँ, इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं। COCl की कैटेगरी है एसिड क्लोराइड। इसका जो सफिक्स होता है वो ऑयल क्लोराइड होता है। देखो बड़ा सिंपल है सीधा स्ट्रक्चर। 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, OCl को ऑयल क्लोराइड कहते हैं। सो हो गया ना ये क्या? इथेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड।
अब CONH2 को एमाइड कहते हैं, 1 2 कार्बन वाला एमाइड, ये हो जाएगा इथेन एमाइड। जब कभी आपको ऐसा देखने को मिले ना, RCO, दो तरफ RCO, बीच में एक O अलग से हो, इसे एनहाइड्राइड कहते हैं। 2 कार्बन्स को कहते हैं इथेन। अब ये एनहाइड्राइड ओइक एसिड से बनता है, एनहाइड्राइड ओइक एसिड से बनता है, तो हम इसे कहेंगे 2 कार्बन वाला एनहाइड्राइड, यानी कि इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब तुम कहोगे ये तो दो जगह था, हाँ दोनों हो तो एक ही लिखते हैं। ये देखो इथेनोइक इधर भी है इधर भी है, बट हम लिखते एक ही बार है, सेम है ना, इसीलिए। ओके, आई एम श्योर समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो बार बार देखो भाई, क्या कर सकते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। हर कोई टीचर तो समझा ही सकता है। कहाँ चले गया? यहाँ पे थे हम लोग, 35 पे, है ना? ओके, हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं होता बच्चों, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। सो 35 देखेंगे, टोटल 3 कार्बन आर देयर। आपको पता है जो, एक और बात बताती हूँ, जो साइनाइड होता है, COH होता है, CHO होता है, ये सब ना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। CONH2 हो गया एमाइड, COCl हो गया, इनको पेरेंट चेन में शामिल करते हैं। अगर ये पेरेंट चेन में शामिल ना हो तो कार्ब वर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो साइनाइड का C पेरेंट चेन में आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइल वर्ड इस्तेमाल होता है साइनाइड वाले नाइट्रोजन के लिए। ये 2 कार्बन वाला एसिड है, तो इसे हम कहेंगे इथेनोइक एसिड। दोनों पर COOH है, 1 और 2, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। ये वाला एसिड टमेटो में पाया जाता है, इसका नाम होगा, 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन, ठीक है। 1 पर भी ओइक एसिड है, 2 पर भी ओइक एसिड है, 1 2 डाई ओइक एसिड। ओके, ये देखो 3 हो गए कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स। जब 3 हो, इस रूल को ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हो तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब ये शहनशाह नहीं है क्योंकि 3 है, 2 होते तो ठीक है, जब 3 हो जाते तो वैल्यू ही खत्म हो गई। अब नंबरिंग ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना यहाँ से, ना यहाँ से, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 3 कार्बन, अब 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन। 1 पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, गुड। अब देखो साइनाइड 2 बार है तो पेरेंट चेन में काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, और 1 पे और 4 पे नाइट्राइल है, तो हम लिखेंगे 1 4 डाई नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट, अब 3 साइनाइड आ गए, तीनों को काउंट नहीं करेंगे, फिर वही बात, 1 2 3। Whenever 3 कार्बन containing functional groups are present in the molecule, all of these are not counted in the parent chain. So 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। 1 2 and 3 तीनों पर लगा है कार्बोनाइट्राइल, ट्राई भी शब्द आएगा, 1 2 3 भी आएगा, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ओके, अब ET रूल नंबर 1, वेन एवर इन योर मेन कंपाउंड ET substituent is present, ओपन इट, डोंट स्पेयर इट, जिंदा मत छोड़ो इसको, ओपन करो। 4 कार्बन ऐसे लगाने हैं, ET की जगह पे 2 कार्बन ऐसे लगा दो, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, पापा बदल गया, पहले लग रहा था ब्यूटेन है पापा, पापा इज चेंज। सो ये हो जाएगा 6 कार्बन के थर्ड पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नेम है। ओके, 42 एग्जाम्पल। साइनाइड ऑफ कोर्स प्रेफरेंस देते हैं COH के बाद सेकंड नंबर पे, सो 1 2 3
सेकंड नंबर पे नहीं है, मैंने कुछ वो लिखे हैं जो हम 11th में पढ़ रहे हैं। ऐसे तो एनहाइड्राइड भी है, एस्टर्स भी है, एसिड क्लोराइड भी है, एमाइड भी है, ये सब साइनेट से पहले आते हैं। बट वो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने थोड़े से लिखे हैं ताकि आप याद कर सको। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा ये। 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। आपको अगर सारे नॉमेनक्लेचर देखने हैं तो मेरी अलग से वीडियो है, बार बार बोल रही हूँ, देख लेना। ओके, 43rd क्वेश्चन। ये एस्टर है, कैसे पता चला? COO कि इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है। एस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, O और ये आ जाएगा R। R कौन है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग, इट कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप। सो एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? जो ये वाला ग्रुप होता है ना, इसको पहले लिखते हैं। ये मिथाइल है ना, ये देखो, इसको हम पहले लिखेंगे, इसका नेम है मिथाइल। राइट, अब कितने कार्बन बच गए टोटल? 3 कार्बन पर ओ ओ ग्रुप है। ओ ओ ग्रुप को बोलते हैं O8, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। तो ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके, ये एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर है। एल्काइल एल्केनोएट कहते हैं इसको। ओके, वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड पे। फिनिश, इतने सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाता है। आइसोमर्स क्या होते हैं उससे पहले फंक्शनल ग्रुप है, स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हम ये स्पेशली CBSE के लिए कर रहे हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो दिस इज मोर देन इनफ, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आ सकता। ठीक है, सो डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखो, मैं पहले बता देती हूँ। OH फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, CONH2 भी फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन है? ग्रुप ऑफ एटम्स है, अकेला भी हो सकता है। Cl अगर अकेला है सब्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन रिप्रेजेंट तो करता ही है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, और ये मॉलिक्यूल की स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज देगा। अब अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एल्डिहाइड्स की नहीं होती है। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम or group of atoms in a molecule which determines chemical properties of a compound। COMPD कंपाउंड होता है, जैसे कि CHO, OH etc। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं पहले ही बता देती हूँ। दिस इज मीथेन। मीथेन का अगला मेंबर कौन होता है? इथेन, उसका फॉर्मूला C2H6। फिर कौन होता है? प्रोपेन, C3H8। फिर कौन होता है? C4H10 ब्यूटेन। ये इनका जनरल फॉर्मूला एक ही है, और इन पे दो मेंबर्स के बीच में देखो, एक कार्बन का डिफरेंस है, दो हाइड्रोजन का, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज जिसमें दो कंसेक्टिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस हो एंड दे हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे मेक द होमोलोगस सीरीज। इट इज डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have the same molecular formula and two consecutive members, consecutive होते हैं one after the other, एक दूसरे के पीछे वाले, differ by CH2 group, for example alkanes, alkenes etc। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इससे हमें और समझ में आती है बातों की। सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोहेक्सेन। मैं तुम्हें बताती हूँ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो 2 क्लोरोहेक्सेन है ना, सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढते हैं। हेक्स, पापा कौन है? हेक्स। लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स। 2 क्लोरोहेक्सेन है ये, राइट। हेक्स वर्ड रूट मिल गया, 6 कार्बन ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें नंबरिंग हम अपनी मर्जी से देंगे क्योंकि हमने बनाई है। 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको क्या करना है? 2 पे क्लोरो लगा दो, लगा दिया, बस कुछ और लगाना ही नहीं, डन। अब आप आराम से H लगाइए, 3H लगेंगे, 1H, 2H, इसके भी 2H है, इसके भी 2H है, इसके 3H होंगे। नेक्स्ट है पेंट, 5 कार्बन, 4 पे ईन है, 2 पे ओल है। वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5। इसके 4 पे 1 2 3 4 5, 4 पे ईन है और 2 पे ओल है। बाद में उसके बाद H लगा देते हैं,
यहाँ पे 1H आएगा, 2H आएगा, 1H आएगा, यहाँ पर 2H आएगा। ठीक है, 4 वैलेंसी वी हैव टू सेटिस्फाई। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्स, 2 पे इन 1 पे ओल, ये रहा साइक्लोहेक्स। सॉरी, ये रहा 3, हमने मिस किया क्या? हाँ मिस किया। 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, पहले साइक्लोहेक्सीन बनाया, ठीक है। 3 नाइट्रो 1, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है NO2, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे। 1 2 3। अब तुम में से कोई कह सकता है मैम ऐसे क्यों गए आप, ऐसे भी तो आ सकते थे, आप इसको 1 दे दो, 2 दे दो। नहीं दे सकते, डबल बॉन्ड को जंप करके आना पड़ता है। आप डबल बॉन्ड के टेल से नहीं आप कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से होगी, आप यहां से नहीं कर सकते, आपको डबल बॉन्ड के ऊपर से कूद के जाना पड़ता है। ठीक है, सो 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन बना दिया हमने। उसके बाद है साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल, पहले साइक्लोहेक्स बनाया, 1 2 3 खुद ही लिख दो, 1 पे ओल लगा दो, 2 पे इन लगा दो। नेक्स्ट है 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, पहले पेंटेनल बनाया, मैं यहां बनाती हूँ, 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर ही HO, 5 को ही CHO बना दो, पेंटेन अल है ना, तो 5 को CHO बना दो, जहां पे CHO उसको 1 बोलते हैं, 2 3 4 एंड 5, 4 पे हाइड्रोक्सी लगाना है, उसके बाद H लगा दो, 3H, 1H, 2H, 2H एंड नथिंग। राइट, सो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आ सकता है। एक और बता देती हूँ, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। अब हम ये कैसे बनाएंगे, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, हेप्टेन होता है 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, हेप्टेनल हो गया। 6 पे हाइड्रोक्सी लगाना है हमको, ये रहा, और H लगा दो उसके बाद, सो सिंपल। ऐसी एनसीईआरटी में कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं उल्टे सीधे, जिनके नेम्स दिए हुए हैं उनका नेम, उनकी स्ट्रक्चर बनानी आ सकती है, स्ट्रक्चर से नेम आ सकता है, दोनों कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है। राइट, नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैं आपको पहले अपने हिसाब से समझाती हूँ। ओके, ये देखो, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, राइट, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और अगर स्ट्रक्चर अलग ना हो, स्पेटियल अरेंजमेंट अलग हो, इसको हम बाद में लेते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट को, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डिटेल में, यहाँ छोड़ देते हैं। हम लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को जिनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, सी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन। H लगा लेना अपने आप ही, है ना, 3 आएगा, 2 आएगा, 2 एंड 3 आएगा। ओके, अगर मैं ब्यूटेन को इस तरीके से लिखूं, अभी भी 4 कार्बन है, अगर मैं H लगा देती हूं, 3 2 2 और 3, इसका फॉर्मूला है C4H10। अब इसमें भी H लगाओ, CH3 वेट 1 मिनट, सोनू जरा बैटरी लगाना, मेरा पैर सो गया है। यस, इसमें भी H लगा देते हैं 1, इसमें 3 लगा देते हैं, ये भी C4H10 है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दोनों आइसोमर्स हैं। अब इस आइसोमर्स का नाम क्या है, इस मतलब हमें ये बताना कि रिलेशन क्या है दोनों का। इसका नेम ब्यूटेन है, इसका नेम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। थोड़ा ज्यादा गंदा सा नहीं बन गया, वेट अच्छा सा बनाते, सुंदर सुंदर सा, मजा नहीं आ रहा। देखो मैं दोबारा से बना रही हूँ, H नहीं लगाऊंगी अब मैं, तुम्हें पता चल गया ना ब्यूटेन में C4H10 होता है। तो 1 2 3 और 4 हो गया, इसका नेम है ब्यूटेन। और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन। राइट, इसके पेरेंट में ब्यूट आ रहा है, इसके पेरेंट में प्रॉप आ रहा है, इंडिकेटिंग इसके टोटल 4 कार्बन है, इसके 3 कार्बन है, कार्बन की लेंथ में फर्क है।
ऐसे आइसोमर्स जिनके कार्बन की चेन में डिफरेंस होता है, वो 4 कार्बन की चेन है, वो 3 की है, ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। और पता कैसे चलता है? आपको कोई भी दो कंपाउंड दे रखे हो, उनका आईयूपीएसी नेम लिख लेना। अगर दोनों के पापा बदले हुए आ रहे हैं, बाकी सब ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो चेन आइसोमर्स होगा, राइट। एक और एग्जांपल मैं यहां बता देती हूँ। देखो, इसका नेम है 1 क्लोरोप्रोपेन, राइट। और अगर मैं क्लोरो को बीच में लगा दूं, इट्स नेम विल बिकम 2 क्लोरोप्रोपेन। डिड यू नोटिस वन थिंग? प्रोपेन भी सेम है, क्लोरो भी सेम है, सिर्फ पोजीशन में फर्क है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में किसका डिफरेंस होता है? सब्सिट्यूएंट, या मतलब नेम में पोजीशन का फर्क हो, या तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पे हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वो भी पोजीशन आइसोमर्स है। जब भी कभी दो नेम्स सब कुछ सेम हो, सिर्फ पोजीशन अलग आ रही हो, तो हम उसे पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है। सो अब हम यहां से पढ़ते हैं एक बार नोट्स में से। डिफाइन आइसोमेरिज्म। इट इज अ टाइप विद sorry isomerism is the phenomenon of existence of Isomerism is the phenomenon of existence of compounds with same molecular formula but different structures or spatial arrangement. ये वाला हम बाद में देखेंगे। एंड हम इसको देख, इट्स ऑफ टू टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चर का फर्क होगा, और हैविंग आइसोमर्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इट इज फर्दर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला है चेन आइसोमर्स। ये देखो, ब्यूटेन है इसका नेम, और इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दोनों में किसका डिफरेंस है? पापा का फर्क है। उसका पापा 3 कार्बन का है और उसका पापा 4 कार्बन का है। ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होगी या मल्टीपल बॉन्ड की। ये देखो, इसका नेम है ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, और इसका नेम है ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है। देखो, 2 और 1 का डिफरेंस है। नेक्स्ट में चलते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स। व्हाट आर द फंक्शनल आइसोमर्स? ध्यान से देखेंगे, नाम से ही लग रहा है कि फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। ठीक है। ये देखो, विच डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखो टोटल कितने कार्बन हैं? 2। हाइड्रोजन्स कितने हैं? 6, और साथ में O। इसका देखो, टोटल कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और O। बोथ ऑफ दीज आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो ईथर में क्या होता है? इसका नेम मैं बताती हूँ। इसका नेम है मिथ ऑक्सी मीथेन, और इसका नेम है इथेन 1 ओल। ये मिथॉक्सी मीथेन है, ईथर का नेम है। ईथर की कैटेगरी होती है ROR, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगे होंगे। एक कार्बन को हम बेबी बना देते हैं, बच्चा, एक को पापा बना देते हैं। छोटे वाले को हमें बच्चा बनाना, तो यहाँ पे दोनों सेम थे, तो हमने लिखा मिथॉक्सी मीथेन। मीथेन पापा है, मिथॉक्सी उसका सब्स्टिट्यूएंट है। ओके। यानी कि हमें यहां पता चला कि अल्कोहल और ईथर आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स लगते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अल्कोहल और ईथर का क्या रिलेशन है? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। नेक्स्ट देखो, ये प्रोपेनोन है, कीटोन है, और ये प्रोपेनल है, एल्डिहाइड है। ये दोनों भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। मींस एल्डिहाइड कीटोन की जोड़ी चलेगी और अल्कोहल और ईथर की जोड़ी चलेगी। ऐसी भी और जोड़ियां हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं? सी दिस एग्जाम्पल, ये ईथर है, ईथर के इधर मैंने 3 कार्बन लगा दिए, इधर 1 लगा दिया। ये ईथर है, इस तरफ मैंने 2 कार्बन लगाए, इधर भी मैंने 2 कार्बन लगा दिए। जिसका फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है, ईथर का बीच में आता है। अगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो, 3 और 1 है, इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की संख्या 2 और 2 है, तो ये दोनों लगे आपस में एक दूसरे के क्या? मेटामर्स लगे। तो मेटामर्स कौन होते हैं? विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड फंक्शनल ग्रुप। इट्स नेम इज, इस वाले का नेम है मिथॉक्सी प्रोपेन। इट इज मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका नेम क्या है?
इथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी इथेन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की पहली बात बताती हूँ, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये बीकर के अंदर ही होता है। अगर किसी ग्लास में आपने कीटोन रख रखा है तो इसके अंदर टॉटोमर्स इसके अंदर ही होंगे। अब जो मेटामर्स थे, अलग बीकर में रख सकते हो, पहले को दूसरे को। एल्कोहल अलग होता है, ईथर अलग होता है, एल्डिहाइड अलग, कीटोन अलग, बट ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते बाकी आइसोमर्स की तरह। टॉटोमर्स में क्या डिफरेंस होता है ये ध्यान से देखो। यहाँ पे ये कीटोन है, ये जो एच है ना, सी डबल बॉन्डों के बाजू वाले कार्बन का जो एच है, वो यहां से उठ के ना ओ पे चला जाएगा। देखो किस किस को छोड़ के गया है। 1 पे तो लगा हुआ था, उसको छोड़ा, 2 को भी छोड़ा, 3 पे चला गया। इसको 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट भी कहते हैं भाई। ठीक है, टॉटोमेरिज्म और डेस्मोट्रोपिज्म, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ functional isomerism in which the isomers exist in dynamic equilibrium with each other, and it is also said to be 1,3 hydrogen shift। तो ये देखो शिफ्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, ईन। डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, ओएच को ओल कहते हैं। पहले कीटो था, अब ये इनोल बन गया। इट इज नोन एज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। देखो, C2H6 को हम इट शुड बी C3H6, नॉट C2, C3H6। ठीक है, इस C3H6 एल्कीन भी बना सकते हैं, देखो C3H6 है, और साइक्लोप्रोपेन भी बना सकते हैं। जो फॉर्मूला एल्कीन्स का होता है वही साइक्लोएल्केन का होता है, तो इनको बोलते हैं रिंग चेन। रिंग क्यों बोला, जब गोल स्ट्रक्चर होते थे ना, फर्स्ट एंड लास्ट मिल जाते, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिंग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। रिंग चेन स्ट्रक्चर हो गई, हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं। राइट, सो दिस इज मोर देन इनफ। एंड आप इसको अच्छे से देखो, बार बार देखो। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी स्कूल हो पानीपत का, आप किसी भी तरह से, मतलब अगर एनसीईआरटी में से ही आता है सिलेबस, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एंड फिजन, ये सब लोग हम लोग अगले उसमें करेंगे वीडियो में। और आप अच्छे से पढ़ें, बहुत सारा पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।